Hello students, in our today's lecture of the consignment account, we are going to talk about the new topic is pro forma invoice. What is a pro forma invoice? It is a kind of a bill which include all the information regarding the cost of the goods, including expenses paid by the consignor, and it look like this format. And whenever consignor sell the goods to the consignee, including this invoice, that is known as a pro forma invoice. What are the information written on it? That is a cost of the goods, then additional expense paid by the consignor, and the total value of the cost, including this. They send the invoice. Why they are sending the invoice? Just because the consignee know that the value of the cost, on the basis of that he can sell according to the selling price. Just because he receiving the rate of the pair is a 600 and some kind of an expense levied on it, that means consignee will know that he can sell more than 600. Obvious thing is they need to earn a profit, so cost price is 600, so he will sell in the 700 or 800 rupees. So to know about the cost of that goods, they sell that kind of a pro forma invoice. But sometimes consignor no need to give the information regarding the cost of goods sold, so they include the profit in the invoice. So goods involved at a selling price, they are adding, consignor will add the profit, some percentage of the profit at that point, so that the consignee will not know the actual value of the cost. Just because if he knows the actual value of the cost, he will be able to sell the goods by our own, or they refuse to do work as an agent, or sometimes they don't want that consignee will know the profit of the consignor, and as well as if he put the profit on the invoice price, then price will be higher, then he will get the great profit or higher profit. So in this kind of, when consignor send the goods to the consignee, he will add some kind of a profit percentage included in the cost of the goods. And what kind of an effect while we are preparing the consignment account or consignee account? You will see the difference, or you will see the actual difference of the effect of the cost price and invoice price through the example, and what are the entries are necessary to make the good invoice at a selling प्राइस. हम एक इलस्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं कि कौन कौन सी एंट्री एडिशनल हो जाएगी जब कंसाइनर कोस्ट में थोड़ा प्रॉफिट ऐड कर देता है. तो हम इलस्ट्रेशन 9 के द्वारा समझते हैं कि इलस्ट्रेशन 9 में क्या दिया गया है. Mayur Brothers of the Bombay consign a good of rupees 20,000 to Anil and Co. Ahmedabad at an invoice, the sum pro forma at a 25% above the cost. That means he needs to add a 25% on cost, above cost. Carefully understand whenever it is written above cost, and either it will be written on above invoice price, but right now we are calculating on the above cost. On invoice price what should be done we will do in the next lecture, but right now we are doing that 25% above the cost. That means the cost of good is 20,000 and additional 25% profit should be added while Mayur transfer the goods to the Anil. Understood? Then paid therefore 800 for freight and carriage for 200 for insurance. Mayur Brothers drew a bill of rupees Anil Co Limited for 6,000 and discounted 8 rupees 5,800 with the bank. Mayur Brothers received an account sale according to the which goods of invoice price is 18,750 was sold of rupees 20,000.
Anil Co. had paid a 500 for wages and carriage, and they are entitled to get 5% commission on total sale and additional commission of the 10% on excess of the selling price over the invoice value. Anil and Co. sent bank draft in a full settlement, keeping the deposit proportionate to the goods still unsold. Prepare a necessary accounts in the company in the books of both the parties and give the adjustment entry of the invoice price in the books of the Mayur brothers. So we are calculating illustration number 9. First we will write the calculation in the books of Mayur. He is a consignor. He is a consignor. So in the books of the consignor, which are the account we need to make? First is consignment, second is consignee, and third is goods sent on consignment. So let's prepare the three of the account. So we have made consignment account, consignee account, and goods sent on consignment. Let's start with the calculation. First is Mayur Brothers of the Bombay consign of goods 20,000 rupees to Anil, including the pro forma of the 25% above cost. So first we will find the value of the goods. Value of the goods that are sent to the consignee. So total value of the goods is 25, and we have to add a 25% profit on cost. So this is a cost price. So 20 into 25 percentage, 20,000 into 25 percentage, it will come 5,000. So total cost is 20,000 after adding 5,000 profit. Total cost of rupees goods is 25,000. Cost of goods at invoice price. 25,000 is the invoice price and 20,000 is cost price. So we have to find out the invoice price after adding the 25% profit. That means original cost of the goods was 25,000, but हमें कंसाइनी को हमारा ये cost price नहीं बताना है, इसलिए हमने उसमें 25% cost ऐड करके बता दिया. ठीक है, तो हम जब भी माल भेजेंगे तो कंसाइनी को तो हम यही बताएंगे कि वो 25,000 का है. तो हम एंट्री क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 25,000. सो हम एंट्री करेंगे 25,000 टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट account. The second entry in the goods sent on consignment account, 25,000 credit by consignment account in a bracket invoice price. यहाँ पे भी लिखेंगे invoice price. ठीक है, बट असलियत में प्राइस गुड्स कितने का है? सिर्फ 20,000 रुपये का है. तो उसके लिए जो हमें 25,000 पे और एडिशनल 5,000 ऐड किए हैं वो हमें रेक्टिफाई करने होंगे, ताकि हमें पता चले कि हमने एट द एंड, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब तक हमें याद नहीं रहेगा कि हमने कितना ऐड किया था. ठीक है, तो उसकी इफेक्ट हमें देनी पड़ेगी. तो हम कहाँ पे देंगे? उसकी डिफरेंस की और प्रॉफिट की 5,000 की अमाउंट है वो हम रिवर्स साइड पे लिखेंगे. रिवर्स साइड मीन्स व्हेन वी आर सेंडिंग द गुड्स वी विल रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, व्हेन द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस वी राइट इन द क्रेडिट साइड. सो हम इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे. कैसे करेंगे? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ऑफ रुपीज 5,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट. 5,000 की हम रिवर्स एंट्री करेंगे. 5,000 टू गुड्स एंड ऑन
कंसाइनमेंट अकाउंट इन अ ब्रैकेट डिफरेंस। क्या लिखेंगे हम? डिफरेंस 25,000 एंड 5,000। अल्टीमेटली क्या हो गया? 25,000 प्लस हो गया, 5,000 माइनस हो गया, अल्टीमेटली 20,000 का कॉस्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी वैसा ही हो गया। गुड्स एंड 25,000 भेजे थे, उसमें से 5,000 डिफरेंस था, अल्टीमेटली हमने कितने का माल बेचा? 20,000 का माल भेजा। समझ में आ गया? ऐसे हमें रेक्टिफाई करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। Then Mayur brothers paid the expenses of rupees 8,800 and 200. So cash account, expense paid, Faith and Courage 800, insurance 200, total 1,000. Then from the Anil brothers he received a bill of rupees 6,000. From the Anil he will receive the bill of the 6,000. From the Anil we are getting the bill of rupees 6,000 by bills receivable account and will discounted at the bank at 5,800. So 6,000 minus 5,800, that means 200. 200 is discount. We will write over here 200 bills receivable account in a bracket discount. In a bracket discount. Then Mayur received an account sale according to the goods of rupees invoice price 18,750 was sold for 20,000. 18,750 का जो अमाउंट इनवॉइस प्राइस के सहित हमने भेजा था उसमें से 20,000 रुपये का सेल हो गया, तो हमें सेल्स रिसीव हुआ। तो हम एंट्री क्या करेंगे? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो हियर वी विल राइट सेल्स कंसाइनमेंट अकाउंट इन अ ब्रैकेट सेल्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000 कंसाइनी अकाउंट, और अनिल अकाउंट यू कैन राइट एनीथिंग, एंड सेल्स ब्रैकेट में मेंशन करना ज़रूरी है। देन आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो पेड अ 5,000 रुपीज फॉर wages and carriage. So 5,000 rupees expense paid by the consignee. So here we will write by consignment account first expenses of rupees 500, and here we write to consignee account first expenses 500. Then he received to entitle a 5% commission on sales. So general commission of rupees 5,000, 20,000's 5%. 20,000's 5%. It will come 1,000. General commission 1,000. Then additional commission is on excess of the selling price over a invoice price. सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस होगा, उस पर भी उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो इनवॉइस प्राइस क्या थी? 18,750 एंड 20,000 क्या थी? सेलिंग प्राइस। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 1,250। उसका 10% उसको एडिशनल कमीशन मिलेगा 125। कैसे मैंने निकाला? फिर से एक बार देख लो। सेलिंग प्राइस थी हमारी 20,000, इनवॉइस प्राइस थी हमारी 18,750। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 1,250 एंड ऑन दैट डिफरेंस वी हैव टू गेट, consignee will get the 10% discount. It will come 125. जस्ट ये हर एक सम में ऐसा नहीं करना है। ये सम में एडिशनल दिया गया है, इसीलिए ही हम एडिशनल कमीशन इसको दे रहे हैं। हर एक सम में ऐसा कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं है। समझ में आया? दैट इज़ अ 125 एडिशनल कमीशन। एडिशनल कमीशन 125
additional commission total is equals to 1625 हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी बाकी है। अब हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी कॉस्ट प्राइस है, कौन सी इनवॉइस प्राइस है और कौन सी सेलिंग प्राइस है। तो ये 3 प्राइस को आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में पहले देखते हैं कि स्टॉक कितना बचा है। हमने इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड किए थे, तो कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस ही पता है, तो पहले हम इनवॉइस प्राइस से कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 25,000 रुपीज़, हमने 25,000 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस से हमने माल भेजा था, तो हमने टोटल माल 25,000 इनवॉइस प्राइस से भेजा था। उसमें से इनवॉइस प्राइस 18,750, यू कैन इजीली सी that invoice price of rupees 18,750 was sold for the 20,000. So 20,000 is selling price and 18,750 is a invoice price. इतने का माल बिक गया है, तो हम माइनस करेंगे 18,750. So 25,000 minus 18,750, that means 6,250 रुपीज़ का माल नहीं बिका है। तो वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज 6,250 प्लस इसमें नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस का कुछ भी दिया गया नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे, प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। तो कंसाइनर ने कितना पे किया है, 1,000 रुपीज़। सो 25,000 का गुड्स थे, आपको याद रखना है हम इनवॉइस प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप 20,000 लेके प्रपोर्शनेट निकालेंगे तो गलत आएगा, इनवॉइस प्राइस पे ही निकालने हैं। तो टोटल एक्सपेंस 1,000 किया था, वो 2,500 के लिए था, तो 6,250 के लिए कितना कॉस्ट आएगा। सो 6,250 इंटू 1,000 डिवाइड बाय 25,000, इट विल कम 250। सो 250 कॉस्ट आ गया, प्रपोर्शनेट एक्सपेंस पेड बाय द कंसाइनर। अब हम प्रपोर्शनेट पे करेंगे, प्रपोर्शनेट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। बट यहाँ पे कौन सा एक्सपेंस होगा, नॉन रिकरिंग, और उसने पे किए हैं 500 रुपीज़ फॉर वेजेस एंड करेज, दैट इज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अगेन इसी तरह से हम फाइंड करेंगे 500 फॉर 25,000, सो 6,250 के लिए कितना, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 125। सो टोटल हो गया, टोटल वैल्यू ऑफ द कॉस्ट हो गई 66,025, 6,625। तो टोटल वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गई, 6625। सो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट 6625, out of which we know that we have calculate as per the invoice price. We calculate as per the invoice price, but we have not consider in our account, we will not consider in our account, that is, but actual price was 20,000. So we know the difference, we add additional 25% on the 25,000. हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है और हमें क्लोजिंग स्टॉक में ऐसे डिफरेंस आ जाएगा, तो हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी प्रॉफिट की। इसीलिए जैसे ही हमने यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू इनवॉइस प्राइस लिख के यहाँ पर डिफरेंस लिख दिया था, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का एक्चुअल इनवॉइस प्राइस की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब हम डिफरेंस लिखेंगे तो एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ डिफरेंस फाइंड करेंगे 6250।
सो इनवॉइस प्राइस थी 6250, उसमें दैट मीन्स उसमें 25% ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड हो गया है, इसमें 25% ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड है। तो सपोज cost price is 100, if we add a profit of ₹25, it will come 125, that is our invoice price. So अगर invoice price 125 है तो वैल्यू है 6250, तो 100 लेते हैं हम, हमारी cost price फाइंड हमें 100 से करनी है, तो 100 में कितना होगा, तो हम फाइंड करेंगे 6250 into 100 डिवाइड बाय 125, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया 5000, बट हमने तो किस हिसाब से किया है, इनवॉइस प्राइस से, तो 6250 माइनस 5000 it will come 1250, so difference will come 1250 जो हमें यहाँ पे लिखना है, और हम यहाँ पे लिखेंगे टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट इन अ ब्रैकेट डिफरेंस, क्या लिखेंगे, इन अ ब्रैकेट डिफरेंस। समझ में आया? 2 एंट्री आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी जब इनवॉइस प्राइस पे होगा, इनवॉइस प्राइस यहाँ पे लिखेंगे और डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में भी इनवॉइस प्राइस वाले क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे और डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 एंट्री एक्स्ट्रा हो जाती है, आपको दोनों साथ में ही करनी है ताकि हमें पता चले कि कॉस्ट प्राइस क्या है। समझ में आया? सिंपली सारे अकाउंट क्लोज करते हैं और देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। $2550 प्रॉफिट आया। टू P&L account in a bracket profit, we will get the profit of 2550। यहाँ पे देखते हैं कंसाइनी हमें ड्राफ्ट में कितने अमाउंट देंगे। यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई हुई है, कीपिंग द डिपॉजिट प्रपोर्शनेट टू द गुड्स स्टिल अनसोल्ड। गुड्स स्टिल अनसोल्ड मीन्स क्लोजिंग स्टॉक जो होगा उसके हिसाब से डिपॉजिट रखेगा। कंसाइनी थोड़े डिपॉजिट अपने पास रुपये रख लेगा, सारे के सारे डिपॉजिट मनी वापस नहीं भेजेगा। जैसे ही उसने एडवांस 6000 भेजे थे उसके प्रपोर्शन में वो थोड़े बहुत अमाउंट अपने पास रख लेगा। जैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं कि उसने 6000 रुपीज़ के एडवांस बिल दिए थे, एडवांस में पे किया था बिल्स के, वो कितने वैल्यूज़ के गुड पे दिया था 25,000 गुड्स बिल, और रिमेनिंग गुड्स क्या है 6250 रुपीज़ के हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्रपोर्शनेट कितना हुआ, 6000 पे 25,000, तो 6250 पे कितना, तो 6250 इंटू 6000 डिवाइड बाई 25,000, इट विल कम 1500 रुपीज़ वो अपने पास रखेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1500, क्योंकि वो अपने पास रख रहा है। अब देखेंगे कि कितना बाकी का अमाउंट वो भेज देगा। 13,875 वो बाकी का हमें भेज देगा। बैंक अकाउंट न ब्रैकेट ड्राफ्ट। ये 1500 वाली एंट्री सब में ऐसी ही एंट्री हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम के हिसाब से ये चेंज भी हो सकती है और या नहीं भी हो सकती। इसके साथ जो 10% एडिशनल जो कमीशन था वो भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट था।
वो हर सम में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये हमने अकाउंट्स बनाए इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। अब हम कंसाइनी के बुक में अकाउंट आपको बनाना है, जो होमवर्क में है, जो आपको बनाना है इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनी। बट उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही बनाना है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि हमने प्रॉफिट ऐड किया है या नहीं किया है। ठीक है, वो कंसाइनी है, उसे कुछ नहीं पता कि इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड किया हुआ है। हमें नहीं बताना था, इसलिए तो हमने ऐसे न्यू सिचुएशन क्रिएट करके बनाया। बट कंसाइनी को कुछ भी नहीं बताया, तो कंसाइनी के बुक में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी। जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाना है। तो आपको वो होमवर्क में करना है इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनी, एज वेल एज यू हैव टू डू अ होमवर्क ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 15, रमन ऑफ राजकोट। रमन ऑफ राजकोट कंसाइनर 20 टीवी सेट्स वाला। उसमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान में रखना है कि जनरल कमीशन है, डेल्क्रिक कमीशन है, और आपको कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल सम हो गया जो आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू।